Hello students, good morning. I am your Jamil sir going to teach you class 10th physics. Your first chapter reflection and refraction of light is continue here. We have already described all the topics related to the reflection of light in the number of videos in the previous videos. Okay. Now I am just going to describe initiate the refraction of light from this video. Okay. Here is the refraction of light. The new topic is refraction of light is initiated here. What is the refraction of light? ये question arise होता है. For the refraction of light, the medium should be transparent. Okay. When light is incident on a medium and the light rays get divert from its path. अपने path से वो अगर divert कर जाता है, then you can say there is the phenomena of refraction of light is happening here. ठीक है. Such phenomena is known as the refraction of light. Okay. So by this way you can define the bending of light, the phenomena of bending of light, the phenomena of bending of light is called light when passes from one medium to another medium, one medium to another medium, to another medium is called refraction of light. Okay student, suppose here is a medium glass slab. You know the glass slab in your lab. This glass slab is available. Okay. Suppose this is the glass slab. क्या है हमारा ये glass slab है. ठीक है. And here is the air in the surrounding. It is air. मतलब air में रखा हुआ एक glass slab है. ठीक है. Here is air. Here is also air. This is the glass slab. The density of glass slab with respect to air is maximum. ठीक है, ज़्यादा होगी लाइट डेंसिटी. सपोज here is a light ray is incident on this surface. Suppose this is the incident ray. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे आएगा तो इस पर एक नॉर्मल हमें लेना पड़ता है. द लाइट रेज आर डाइवर्ट, ऐसे बेंड हो जाएगी. ठीक है, ये सपोज दिस इज सम एंगल, इंसिडेंट एंगल, दैट इज यू कैन से इंसिडेंट एंगल इज आर. ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, here is the normal. ठीक है, एंड द रे इज डाइवर्ट मीन्स ये बेंड हो गया है, ऐसे कुछ बेंड हो गया रे. समझ में आ रहा है सबको? दिस इज आई. व्हेन लाइट रीचेज, अभी डिफाइन कर रहे हैं, लाइट रीचेज एट द अदर सरफेस. दिस इज सरफेस ए, हियर इज सरफेस बी. ओके, देन क्या होगा? ये लाइट इमर्ज कर जाएगी, एयर में आ जाएगी, तो ऐसे आ जाती है. दिस इज आई, आर होगा, सॉरी, दिस इज here is a incident ray, this is the r, this is the r, here is the emergent ray. Okay student, this is. तो क्या कहा हमने? the phenomena of bending of light is known as the refraction of light when it is passes from one medium to another medium. Suppose here is the light incident हो रहा है, देखो, you take the normal and the light rays are bent when it is passes from this air to glass, means rarer medium to denser medium. इसको क्या कहेंगे? और rarer medium कहेंगे एयर को. और इन कंपेरिजन टू दिस इज द डेंसर मीडियम. ठीक है, डेंसर मीडियम हो जाएगा. अब लाइट रेज यहाँ पे पास कर रही है तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी रेज. समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइट रेज बेंड हो गई तो वही है, बेंडिंग का फिनोमिना चल रहा है. अगेन देखो, ये लाइट रेज जब दूसरी सरफेस बी पे आती है तो ये देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी डेंसर मीडियम ग्लास से जो एयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगेन बेंड कर गई, बेंड कर रही. देन यू कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज हैपनिंग हियर. ठीक है, यहाँ भी हो रहा है, पॉइंट ए पर भी हो रहा है, पॉइंट ऑफ बी पे. तो इसके लिए देखो, देयर इज लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉज क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन द सेम प्लेन. एंड सेकेंड थिंग इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल आर इज कॉन्स्टेंट. ये बात होती है, इसको हमें समझना है. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन.
फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नोट्स भी बनाते चलेंगे आप लोग ऐसे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident lies on the same place. ओके, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ देखो इसका, सेकंड लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। ओके, ऐसे लिखोगे आप लोग, तो इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, आप लोग लिख लेना द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। मीन्स देन यू कैन से, यू कैन राइट दिस sin I upon sin R is equal to n, sin I upon sin R is equal to n, where n is known as the refractive index। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, दिस लॉ इज ऑल्सो known as स्नेल्स लॉ। क्या कहेंगे इसको? स्नेल्स लॉ भी कहेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। देखो अनदर थिंग इज, दिस इज द सेकंड लॉ, सबको याद होना चाहिए। अ पॉइंट इज हियर, चलो यही समझते हैं, पॉइंट इज हियर, देन मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या है? Suppose this is the air medium, glass slab is situated in the air, this is the medium, second medium, ठीक है। मीन्स मीडियम में जब लाइट रेज जाएंगी तो क्या हैपनिंग होता है? when light rays passes from rarer medium, rarer medium कुछ भी हो सकता है, हमने एयर लिया है यहाँ पे, सपोज एयर, ठीक है, टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होगा? देन इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये पॉइंट आप लोग लिख लोगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, हाँ, लाइट हाँ गोज थ्रू, लिख सकते हैं, थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then what's happening? It away from the normal, away from the normal, ठीक है। नॉर्मल से क्या हो जाएगा? अवे हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक फिनोमेना हो गया। दिस इज द बेसिकली लाइट पासिस फ्रॉम व्हेन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर दिस केस। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स, here is some values you have to learn for the sine। देखो learn some values for टेग्नोमेट्रिकल रेशियो, टी रेशियो। आपके स्कूल में अगर टेग्नोमेट्री पढ़ाया गया होगा तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर द क्वेश्चंस। सपोज दिस इज 0 डिग्री, एंगल्स देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे हमें लर्न करना है, ठीक है। दिस इज योर टी रेशियो इज हेयर, टी रेशियो मतलब टेग्नोमेट्रिकल रेशियो कहेंगे। हियर इज साइन,
साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ये चीज़ें लर्न करनी है। कॉस में भी आ जाते हैं, ज़्यादा इसमें वाली साइन का ही यूज़ होना है, तो 2 ही बता देते हैं अभी। साइन कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू √2 एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड हियर इज 90 की वैल्यू 0। तो इतना आप लोग लर्न रखोगे, ठीक है, बेसिकली फॉर योर क्वेश्चन। हियर इज एन एग्जाम्पल इज हियर, सपोज आई एम जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index as of medium as shown in the figure। एक फिगर हमने दे दिया, सपोज ये, ठीक है, लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, दिस इज द नॉर्मल, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सपोज दिस इज द 45 डिग्री, दिस इज द इंसिडेंट रे, हियर इज द नॉर्मल, हियर इज द रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ओके स्टूडेंट। एंड हियर इज द मीडियम। अच्छा, कौन सा मीडियम होगा ये? ऊपर देखो, लाइट रे 60 डिग्री पे आ रहा है और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल चल रहा है, तो ये ऊपर का मीडियम कैसा होगा? रेयरर मीडियम, ठीक है, दिस इज मीडियम 1 इज रेयरर एंड दिस इज द मीडियम 2, दिस इज क्वेश्चन हियर, ठीक है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके स्टूडेंट, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, यू हैव गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू, देखो 60 डिग्री यू हैव गिवन एंड एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री यू हैव गिवन, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ देखो, अभी हमने सेकंड लॉ बताया था, बाय स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करोगे, साइन आई की वैल्यू कितनी है? आई की साइन 60 अपॉन साइन 45। 60 की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2, देन यू ऑब्टेन हियर √2 ऊपर चला जाएगा, मीन्स क्या होगा? √3 × √2 अपॉन 2, मीन्स √6/2। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, √6 की इसमें पुट कर देंगे, दिस विल बी द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस when light rays passes from this one medium to another medium. Okay student, in the next video we will discuss the refractive index. How can you define the refractive index when light passes from one medium to another medium? What will be happening for the speed of the light? Okay student, watch the video, continue and complete your notebook according to these videos. Okay student, okay, bye.